So about 30 respected members have spoken on the price rise related discussion. मैं उन सबको आभार कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे विषय में विस्तार से उनके मन के भावनाओं को व्यक्त किए हैं. But let me, without undermining some of the points that many members have said, I find it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actually data-driven concerns about price. इसीलिए मेरा जवाब भी थोड़ा politically मैं देने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए किसी मेंबर को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, एट द सेम टाइम जवाब सुन करके ये क्या है राजनीतिक भाषण दे रही हो, राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा. ठीक है जी. आपने बोले स्टार्ट आपने की. सो इस बीच में ऐसे इंटरप्शन आना भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है सर. मैं बिल्कुल आपकी अनुमति से आगे बढ़ती हूँ. आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सदन में व्यवधान नहीं पैदा होने दूंगा. हाँ सर, आप हैं इसीलिए मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूँ. आप उनको परमिशन मत दो कि वो व्यवधान पैदा करें. सर, लेट अस प्लीज be in this house looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just 2 or 3 highlights will tell you where India is compared to the rest of the world and why should we have to compare with the rest of the world. Because whether it was in 2008 or usse pehle, we've never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind, and coming out of the pandemic, even as all of us were trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that everybody, members of parliament and also state governments, have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for this kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they have downgraded the global growth, when they have reassessed saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse, it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So, it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that the way in which global value chains have hit us. But in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than
most countries. I think we... नौ माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप सबने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुने। सबको बता दिया माननीय मंत्री जी। So, globally when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment India has remained the highest, I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. And it is exactly this, sir. It is exactly this which I am trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying this country is suffering with that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves, rather than, excuse me ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker, sir. Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. So, sir, it's important for us to, for all the members, through you I would like to say, I'm quite convinced of every input given, and I think it's my duty to respond. But even before hearing me, if there's mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear. So I would seek your indulgence on that. Sir. Sir, this is why I want to say this to you. When there can be interruptions which are serious, and when there are mocking tone coming from there, I reserve my right as a member of this House to reply to those. And if that is treated as dumpty, what should be the first one which comes? Treated as mocking or dumpty? She is not a member of this House. Oh, thank you. Otherwise I wouldn't be... all right, in that House or this House. Dada, you're always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि आप बैठे बैठे टिप्पणी न करें, और माननीय मंत्री जी इनकी बेटी टिप्पणी को आप सुने नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और ये मैं अपेक्षा करूंगा बैठे बैठे कोई टिप्पणी न करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। I'm not a member of this House, but with your permission, I'm here because I have to reply, sir. क्यों? So the senior member
Saugata Roy should probably take that into his, system. Okay, thank you, thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions, na? Recall those days, because you always had that approach to women in the house. Sir. आप बोलिए ना, आप बेटे बेटे टिप्पणी मत सुनिए आप कोई. Sir, the GDP of the US fell 0.9% in the second quarter, following a 1.6 decline in the first quarter, marking a start of what they call themselves an unofficial recession. There were some members who were saying, even Adirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured, there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please, Mani Sarash, please, no. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey, which was done by economists, sir, has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky positions of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and bank's health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compared globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honorable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central governments very consciously have controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22. Compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we've brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the center and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both center and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, wave, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few
comparisons. Today, sir, this morning, we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores. Second highest. And compared to the last year, this is one of the highest amounts. This year in April, you may be aware, I'd like to gently remind, in April 2022, it was 1.67 lakh crores, which was the highest reached. Now we've got in July 22, the second largest, which is 1.49. This is the fifth consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. GST collections have been above 1.4 lakh crores consecutively for 5 full months. So the Manufacturing Purchasing Managers Index, which has also come out only in the morning, I think, and it is at 8 months highest number of 56.4 for July. So the trend for output and new orders are strengthening, so the economy is really getting even more robust. The PMI rose from 53.9 in June, I said it is 56.4 in July, well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level, separating growth from contraction for a 13th month in a sequence. So India's 8 infrastructure sector, all of them grew in double digits for the second consecutive month in June. Data released on for the month of June showed the core sector grew at 12.7% in June year on year. So strictly speaking, sir, Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs. I remind myself about the line Honorable Member Supriya Sule said, you know, it's enough, you can't be going on talking about earlier days. Now you've had enough number of time. She compared also very untypically to a married woman who enters the house. She gets to be a part of that house and you don't anymore say we are new, whereas what has been there and all that. But in these kind of situations, where constantly questions are based not so much on facts, I'm not talking about Supriya ji alone, but in general, when facts will have to be reminded, because the way in which questions are being asked as though it didn't exist earlier. Even now the leader of opposition said, please accept that inflation existed before the pandemic also. Inflation exists, sir. At what level is the question? So conceding to that point, I have no difficulty. Inflation exists. But at what level? And that is why, if you will pardon me, Honorable Member, I would like to go back to recalling. Let's not forget, for a small taper tantrum, I'm saying small today, of the Fed of 2008, the problem continued till 13, that the Indian economy became a fragile file country. But what are we today in? Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine. Supply chain, even today, largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है. हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है?
एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 13 में, 2013 में। मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर, रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है, 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था यूपीए के कार्यकाल में, 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया, 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। वो भी याद करना चाहिए जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे, करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे, मगर आप 22 मंथ्स में दानिश जी आप उठकर सही प्रश्न पूछे। ओ ठीक है सर, उनका नाम अगर दोबारा उठेंगे तो नाम ठीक है लीड कर दो सर। तो इसीलिए हमें चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला, और इसीलिए कि वोट भी मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिला, 7% से नीचे ही रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन को। जो जनता के ये एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार वोट दिया, उसके अनुसार ही हमारा डिलीवरी भी हो रही है। सो याद रखना चाहिए सर, इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है 7%, 22 मंथ्स 9% से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए, ठीक है। सो इससे ज्यादा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर और बोल सकती हूँ सर, मगर समय भी हो रहा, आगे बढ़ती हूँ। अरे 7 से कम हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। समस्या है माननीय स्पीकर सर, मैं दोबारा, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदिर जी एक, हाँ ठीक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर के बोले कि देखो इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की है। सर इनको आदत है एक आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे। हाँ उनके आदत है, और ये भी है कि उन्हीं इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनका टिप्पणी के बारे में ही जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिए। मगर कौशिक बासु जी के नाम लिए, और हाँ रघुराम राजन भी है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, मैंने सोचा एक बार रघुराम राजन जी का बयान एक बार ध्यान दिलाएंगे। हाँ वो भी सही बात है, खुद अधीर रंजन जी इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट।
हम जब महंगाई घटाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, अगर यहाँ कहेंगे आप ठीक है सर, शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ये बात बोले कि आरबीआई ने अच्छा काम किया. RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. So Pakistan, Sri Lanka का जो problems है वो problems हमें नहीं होने देना चाहिए, ऐसे करके RBI ने अच्छा काम किया है, ये उनका टिप्पणी. और ये भी है differentiating India from its vulnerable neighbors. Sri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted, calling it a good sign. मैंने अभी debt to GDP figures पढ़ा, numbers भी पढ़ा आपके सामने, उसका रघुराम राजन जी भी जिक्र कर रहे हैं. जो दिल्ली, न्यू दिल्ली के सरकार डेट को कम रखना अच्छा काम किए हैं, और भी किए. माननीय प्लीज एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट. माननीय सदस्य, एक मिनट. माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप हर सेकंड में उठना ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका. बिल्कुल नो, गलत तरीका आपका है. आप माननीय मंत्री जी. सर, रघुराम राजन ने ये भी कहा है, वी हैव सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. RBI has done a good job in increasing the reserves. We are not having problems like Sri Lanka and Pakistan. Our foreign debts are also less. इतना स्पष्ट बोले. नो प्लीज, तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल. आप मंत्री जी उनकी बात पे मत कहिए, आप, मैं देख रहा हूं सब चीज. ठीक है. और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत चिंता कर रहे हैं आदिर रंजन जी. रघुराम राजन दोबारा इस विषय में क्या बोले? At present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rates which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also. Sir, ये RBI के तरफ के असेसमेंट रघुराम राजन जी ने बोला, और उससे ये भी समझ में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ है और इन्फ्लेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है. मगर बट ऑफ कोर्स he did not say about measures we have taken from the government, from the Ministry of Finance, to reduce the cost of imports on, say, like edible oil, masoor dal and so on. मैं उसको जिक्र करना चाह रही हूं सर. Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, आदिर जी सुनिए, 35.75% to first 8.25 and now to 5.5% only. So, drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible prices, oil prices can come down. On sunflower and soya bean oil, both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced it from other countries. The customs duty has been reduced drastically from 38.5% to 5.5%. We've taken out the customs duty so that कम घर पर edible oil भारत देश में पहुंचे, जनता को सस्ते में edible oil मिले. Second, sir, TRQs मतलब rates और tariff rate and quota restrictions आमतौर पर होता है.
nearly for 20 lakh metric ton of sunflower and soya bean oil, TRQ has been made nil. आप जितने चाहे इंपोर्ट करो, ड्यूटी बिल्कुल जीरो में इंपोर्ट करो, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा, सनफ्लावर ऑयल भी आएगा। सो स्टेप्स क्या आपने उठाया प्राइसेस कम करने के लिए, एक एक करके मैं बोल रही हूं। नेक्स्ट, the prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May, with maximum decline of 18.1% coming in palm oil prices. The other categories are sunflower oil, soya bean, groundnut, mustard and vanaspati have also seen correction in the range of 1.7%, 1% to 7% in the last 1 month. Sir, सर, मुझे दुख लग रहा है, बाहर जाकर के प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है, कहने वाले कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाहर वो भाग रहे बाहर, जवाब सुनने का क्षमता तक नहीं है उनको। यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस, आपको जाने प्लीज। माननीय मंत्री जी, what a vital, they can go home, I should say. Sir, customs duty on masoor has been reduced. मारे सर प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए सर, बैठिए मैडम, प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री सर, पिछले पूरे सप्ताह सर पिछले एक सप्ताह और उससे पहले से भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले कांग्रेस और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे कि जब तक मेरा हालत कोविड से वापस आऊंगी तब तक प्लीज सह जाइए, फिर करेंगे, आपकी अनुमति से आज हो रही है। और उसके लिए मेरा शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी, प्लीज आप स्वस्थ रहो वगैरह, वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, निकल गए, पूरे कांग्रेस निकल गए सर। तो एक विषय अंदर और बाहर जाकर के दूसरे, जब चर्चा हो रही है वो नहीं रहते इधर,
और बाहर जाकर सरकार भाग रही है, सुनने वाले नहीं है, चर्चा करने को मन नहीं है। अरे चर्चा तो हो रही है अभी। सो कांग्रेस का द्वि गला, दोहरा चरित्र इससे स्पष्ट हो रही। सर, और कदम हमने उठाया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मसूर दाल का कस्टम्स ड्यूटी भी जो 30% तक था इंपोर्ट करने की, क्योंकि दलहन का बहुत ही सपोर्ट हम दे रहे हैं। किसान हमारे देश में दलहन अच्छा उत्पादन करें, इसलिए हाई ड्यूटी था 30%। मगर आज क्योंकि हमें दलहन भी चाहिए, मसूर दाल चाहिए, इसीलिए वो 30% से लेकर के आज 0 में आ गया है। मसूर दाल इंपोर्ट कर सकते हैं, सस्ते में मिलेगा। फिर डिस्टर्ब, आप सीनियर मेंबर, नो माननीय मंत्री जी, ठीक है सर। नो नो नो, ऐसे बीच में नहीं। आप माननीय मंत्री, आप सर, सो दैट इज वाई सर, नहीं ठीक ठीक। No, I fully recognize, I understand your question. All right. All right. सर, आज का इस परिस्थिति में, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है, तुरंत करना है, पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री जी दलहन के लिए, तिलहन के लिए बहुत ही सारे कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेट में हर मंत्री के साथ बात करके इसको विस्तार करने के लिए और उत्पादन विस्तार करने के लिए। फिर भी क्योंकि आज हम प्राइस के विषय में चर्चा कर रहे हैं और तुरंत हमें जनता को सस्ते में पहुंचाना चाहिए, इसीलिए इंपोर्ट को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमारे किसान के खिलाफ हम जा रहे हैं। हमारे किसान को जितने भी प्रोत्साहन देना है, जितने भी बोनस वगैरह देना है दलहन और तिलहन के लिए, वो जरूर करेंगे। Sir, similarly, customs duty on steel was rationalized significantly. I know Pinaki ji raised an issue. I will address that. Further, customs duty was also exempted on iron and steel scrap, while customs duty was also rationalized on copper scrap. ये क्यों important है? MSME का रॉ मटेरियल में उनको प्राइसेस हाई जाने में, उनको उनके बिजनेस करने में बहुत ही दिक्कत था। उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत मिला, इसीलिए उनके रॉ मटेरियल सस्ते में मिलने के लिए कस्टम्स ड्यूटी इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हटाया गया। फिर कस्टम्स ड्यूटी हैज आल्सो बीन एग्जेम्प्टेड ऑन कोल, मेट कोक, कोकिंग कोल एंड फेरो निकल। ये सब भी स्टील इंडस्ट्री को भी चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, उनको उनके सुविधा के लिए उन विषयों में भी कस्टम्स ड्यूटी ने कम करवाया। हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम करवाया। फिर स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में अभी गिरावट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/10 उसमें कमी हुआ है, क्योंकि we have reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot rolled coil steel at the traders end have slipped by about 8%, or about 5,500 per ton since May 18. So top steel makers have also quoted prices for June that are lower by 4,500 or 5,500 a ton. इसका सरासर बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, जिससे उनका कारोबार में अच्छा चलने में इकोनॉमी भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। इन टेक्सटाइल्स सर, customs duty on key raw products like nylon chips, nylon yarn and caprolactam have all been rationalized. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fiber, PTA and other fibers and yarn, so that raw material for textile industry will also be available. Customs duty on raw cotton
has also been fully exempted. रॉ कॉटन का बहुत ही डिमांड, और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके बारे में बहुत चर्चा है, उसमें भी ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और सस्ते में रॉ मटेरियल हमारे लोग को मिलने के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया। 38 lakh tons of metric tons of free food grains were provided for every month for 8 months to 75.8 crore beneficiaries, हम सबको मालूम है। This year too, वो September 22 तक हमने अनाउंस कर दिया। सिर्फ एक विषय माननीय अधीर जी ने पूछा मगर निकल गए, सीपीआई के बारे में बात करो, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करो। सर 2012-13 में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 10.505 था, 13-14 में 9.38 था परसेंटेज, 14-15 में 5.83, 15-16 में 4.91, ऐसे करके हमारे कार्यकाल में 6.16 2020-2021 में पहुंचा, मगर वो भी 10% से तुलने में कुछ भी नहीं है। 10% था 2012-13 में, यह याद रखना चाहिए सर। और एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बोलना चाह रही हूं। 2011-12, 12-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 था, वेरस अभी 1920 में 7.35। ऐसे करके हर लिस्ट में अभी जो रेट है सर, चाहे वो फूड ग्रुप हो, पान सुपारी टोबैको हो, फ्यूल एंड लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है, वो डबल डिजिट में, अभी हमें सिंगल डिजिट में है। सो ये सब याद दिलाने के लिए मैं बोल रही हूं। और एक और विषय, क्योंकि विदेश से हमें बार बार कंपेयर कर रहे हैं हमारे सदस्यगण, मैं जब रघुराम राजन जी का बयान बोलते हुए बोले कि भारत देश का हालात श्रीलंका से बेटर है और बांग्लादेश से बेटर है, वो रघुराम राजन जी का बयान है। और बार बार बहुत सारे बार लोग बोलते हैं, अरे बांग्लादेश को देखो, वो इतना हमसे ज्यादा अच्छा चल रहे हैं और हम ऐसे रुक गए। मैं सिर्फ एक आध सच्चाई इस हाउस के सामने रखना चाहती हूं सर। बांग्लादेश का आज आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन का लोन डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है। सो बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले ये भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन मांग रहे हैं। माननीय सदस्य, आपको ज्यादा समस्या है क्या? बार बार आप भी रहिए, आप भी सर। श्रीलंका ने जब जवाब मिल रही है सर, और उस जवाब से ये पता चल रही है कि भारत देश का हालात बहुत बेहतर है, अरे बांग्लादेश के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले कितने नहीं है हमारे सामने जो बोलते थे हमें कि बांग्लादेश को देखो, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के इनकम, जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी कितना है देखो, बोलने वाले आज मेरे सामने दिख रहे हैं जी, उनके लिए मैं जवाब दे रही हूं। श्रीलंका 3.5 बिलियन आईएमएफ के सामने मांग रहे हैं सर। पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ के उनके अपने ही प्रेस रिपोर्ट में से टोटली एक एक स्टेज पर एक एक अमाउंट कुल मिलाकर के 7 बिलियन मांग रही है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने। भारत देश का हालात वो नहीं है, हमारे पास पूरे रिसर्व है, इसीलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स परफेक्ट है।
जो मैं दोबारा कोट करना चाहती हूं, रघुराम राजन जी भी आरबीआई को क्रेडिट करते हुए बोले, सर, और ये भी है, ये सिर्फ इधर नहीं है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि माननीय सीधे बैठिए, माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं मैं कि आप सदन में कैसे बैठते हैं उसकी गरिमा बना के रखें। पैर पे पैर ऊपर रख के नहीं बैठा जाता कभी। मैं नाम से नहीं बोल रहा ताकि अच्छा नहीं लगे लोगों को, इसलिए इशारे में समझ जाए सब। इशारे में समझ लो। सो बांग्लादेश से कंपेयर क्यों कर रही हो, श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हो? इसी विषय के ऊपर बहुत वरिष्ठ नेतागण ऑपोजिशन में, भारत भी श्रीलंका के जैसे उसी रास्ते पर चल रहे, बोला नहीं है? और अब जब मैं जवाब दे रही हूं, अरे आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हो? सभी देश अच्छा रहना चाहिए सर, मैं किसी देश को बुराई नहीं मांग रही, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी देश अच्छा रहना चाहिए, मगर हमें टोक टोक करके बोला गया कि हमारे देश भी श्रीलंका जैसे। शर्म है ऐसे बात करने वाले नेतागण को, शर्म। सर ये भी बोला गया, व्हाट हैपेंड? I'll answer all of that. नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया, आपके बेट की मंत्री जी, मैंने अलाउ तो नहीं किया उनको। सर मुझे तो सभी प्रश्न, मुझे दुख हो रही है सर, मुझे दुख हो रही है कि 5 घंटे चल सकते हैं विवाद और डिस्कशंस, मगर जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा हो गए, 1 घंटा, वो भी वरिष्ठ। कम ऑन प्रेमचंद्र जी, मैं जवाब दे रही हूं हर एक पॉइंट के लिए सर, लंबा हो रही है, मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाया, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? ये भी बोला गया कि आप आज का हालात में और डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए अभी भी लिक्विडिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूं सर, लॉकडाउन के समय और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के अनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत सारे लोग सुझाव दिए कि प्रिंट करो करेंसी, प्रिंट करके सबको बांटो, जनता को न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो, ये सब आया सर। हाँ? मुझे वो सब बोल करके सर, ये सब बोल करके अभी लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गए, डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी इतना हो गए, आपने प्रिंट करा इसीलिए। सॉरी, डेटा लीजिए, फैक्ट्स के अनुसार हाथ में रख के बात करिए। ये क्या है सर? सर 2018-19 में इंडिया में 22% था सर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। ये मैं सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूं, जिससे समझ में आता है कितना प्रिंटेड है वगैरह। 22%, 1920 में 27%, 2020-21 में 29% और 21-22 में 26%। ये सेंट्रल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर। यूएस का, यूएस से कंपेयर करिए, बांग्लादेश श्रीलंका क्या चीज है, यूएस से कंपेयर करिए। बोलने वाले को प्लीज ये गौर से सुनें। आप तो मुझे सुना दें, उनको मत सुनाओ। यूएस 2018-19 में उनके सेंट्रल बैंक में, उनके बैलेंस शीट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उनके सेंट्रल बैंक का 2018-19 में 20%, 1920 में 19%, 2021 में 35% और 21-22 में 38%, जबकि हमारा 26%। और यूरोजोन
2018-19 में 39%, 19-20 में 39%, 2021 में 42% और 21-22 में 67% सर। सो प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर ये देखिए, यही बैलेंस शीट है उनका सेंट्रल बैंक का, हमारा नहीं है। हम टारगेटेड अच्छे प्लान करके जिनके हाथ में जाना है मदद उनके हाथ तक पहुंचाया, इसीलिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सर अभी सर इशू तो प्राइस का है, वो आपने पूछा है भाई। सर मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाया। 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जीएसटी के बारे में उन्होंने बोला। नो, किसी को अलाउ नहीं किया माननीय मंत्री जी। मनीष तिवारी जी शायद अभी नहीं है इधर, मगर वो जीएसटी के बारे में बात करते हुए बोले जीएसटी तो एकदम फेलियर है, मगर मैं उसका जवाब देना चाह रही हूं सर। जीएसटी के ऊपर एक सर्वे एक कंपनी ने किया डिलॉइट्स का, वो बोले कि 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स फील दैट जीएसटी हैज मेड डूइंग बिजनेस ईजियर बाय ब्रिंगिंग डाउन बैरियर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये भी बोले जीएसटी regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end consumers and along with helping companies optimize their supply chain. So GST के बारे में स्टडीज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रख रही है। फिर एमएसएमई के बारे में भी बहुत ही उनका कंसर्न था, उसमें भी माननीय मंत्री जी जीएसटी एमएसएमई के ऊपर मैंने बोल दिया कि क्या क्या तरीके से उनको रॉ मटेरियल सस्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलना चाह रही हूँ, पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम उनको दिया, दैट हैज सेव्ड, एंड ये एसबीआई का रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स है। 13.5 lakh MSMEs worth 1.8 lakh crores have been saved from slipping to be NPAs. 13.5 lakh MSMEs को 1.8 lakh करोड़ रुपया पहुंच करके उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया है। This is equivalent to 14% of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA. Sir, so RBI डेटा भी एक है सर जो उनको उपयोगी होगा उनको जवाब देने के लिए। टोटल ये बात बार बार उठाया गया कि आपने पेट्रोल डीजल में बहुत कमा रहे हैं, सेस के द्वारा कमा रहे हैं, इतनी कमा दिया वो चला गया कहाँ मालूम नहीं हो रही है, स्टेट्स को कम हो रही है। मैं आरबीआई का डेटा कोट करते हुए आप सबके सामने विषय रखना चाहती हूं। आरबीआई डेटा सेज टोटल डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर incurred by Modi government between 2014 to 2022 is 90.9 lakh crore, far higher than is being alleged by some sections of the opposition. In contrast, 49.2 lakh crore was spent between 2004 and 14. 2004 and 14 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतना था 49.2, whereas 2014 to 2022 90.9 lakh crores have been spent on development expenditure. जरूर पैसा एक्साइज जो सेस और ड्यूटी कलेक्ट किया वो सब नीचे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जाता है। केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं है, मगर जमीन केंद्र राज्य सरकार के पास है, उधर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो पैसा पूरे उधर ही जाता है आखिर। सो केंद्र सरकार ने कमाया, किसके जेब में गया? किसी का जेब में नहीं गया, हर राज्य में डेवलपमेंट में खर्च उठाया गया। सर ये फूड एंड फ्यूल के ऊपर
ये ठीक है डेवलपमेंट रोड बना दिया मगर गरीब को ध्यान रखा नहीं है, बिल्कुल रखा गया है, उसका भी मैं बोल रही हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आवर गवर्नमेंट includes 24.85 lakh crore spent on food and fertilizer and fuel and 26.3 lakh crores on capital creation. Over the 10 years of UPA, only 13.9 lakh crores was spent on subsidies. ये बार बार हमें बोलते हैं मनरेगा में ये कर दिया, कुछ और में ये कर दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके 10 साल में 13.9 लाख ही खर्च किया आपने करोड़, हमने 24.85 लाख करोड़ ऑन फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर किया और 26.3 लाख ऑन कैपिटल क्रिएशन किया है। सर एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग पैंडेमिक के समय चला गया, आपने ध्यान रखा नहीं है, नहीं, वो भी सच नहीं है। यूएनडीपी के रिपोर्ट आया है सर, जिसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि while soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP report said that chances of those in India, particularly those who are earning $1.9 per day, slipping into poverty due to this upturn would be 0. भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। और उसमें यह भी बोला है, रीसेंट कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मेजर्स, वो बोल रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मेजर्स शो दैट targeted transfers not only help poorer households cope with price spikes but also have significantly lowered the impact on carbon emissions. So ये टारगेटेड हमारे सब्सिडी देने वाले उस स्कीम को सराहना करते हुए यूएनडीपी रिपोर्ट बोल रही है गरीबी रेखा के नीचे 0% लोग इंडिया भारत में जाएंगे, ये रिस्क हमें नहीं है। सर फर्दर आईएमएफ का भी है मगर उसमें नहीं जा रही हूं। स्पेसिफिकली ऑन जीएसटी आइटम बाय आइटम बहुत सारे कमेंट्स आया, उसका मैं जवाब देना चाहती हूं। जीएसटी ऑन पेन, पहले विषय सर, जीएसटी ऑन पेंसिल। हमारे माननीय सदस्य खनिमोड़ी जी, एक यूपी से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पेंसिल का दर के ऊपर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, पेंसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। ओके सर, बच्ची ने लिखा है, ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको भरोसा है उन तक लेटर पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनको जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे। किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का मन में नहीं आया, वो भी हम ध्यान में रखना चाहिए। और ये बात मैं बोलना चाहिए हूँ जरूर, हाँ सॉरी, नो सर, मैं जरूर इसका जवाब तमिल में भी दूंगी, क्योंकि हाँ लगा लीजिए, क्योंकि सर बहुत ही पैशनेटली खनिमोड़ी जी बहुत विषय उठाया। बाकी वो जीएसटी पेन के ऊपर, पेंसिल शार्पनर के ऊपर, हॉस्पिटल बेड के ऊपर मैं आती हूँ। हाँ, क्रेमेटेरियम के ऊपर भी आती हूँ सर। നവംബർ 3 2021 பெட்ரோல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 5 ரூபாய் குறைச்சாரு மோடி ஐயா.
டீசல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 10 ரூபா குறைச்சார். அதே மாதிரி மே 2021 22 அது நவம்பர் 2021 மே 2022 மத்திய அரசு திரும்பவும் பெட்ரோல் மேல இருக்கக்கூடிய வரி 9 ரூபா 50 பைசா குறைச்சாங்க. டீசல் மேல 7 ரூபா குறைச்சாங்க. அதே நாள் எல்பிஜி உஜ்வலா கஸ்டமர்ஸ்க்கு 200 ரூபா மானியம் கொடுக்கறதாவும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. सिर्फ एक हमारे तमिल, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग द ट्रांसलेशन, हो रहा है ठीक. मगर सर தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் மேனிஃபெஸ்டோல 5 ரூபா பெட்ரோல்ல நாங்க குறைப்போம், எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு அரசமைச்சா 5 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டீசல்ல 4 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தவிர Sir, I am continuing, sir. State government, அதே மாதிரி. Sir, I am not allowed to talk. I don't want interruption. State government, அதே மாதிரி 100 ரூபா எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு சப்சிடி மானியம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. சார் கொஞ்சம் So, 100 ரூபா மானியம் கொடுக்கறதாகவும் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. அதே சமயம் சார் இது ரெண்டும் நடந்துருச்சு. Sir, I can't shout, sir. I'm very weak. Sir, this is outrageous, sir. அவங்க பேசும்போது நான் கேட்கணும், அவங்க பேச ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கணும். ஆனா பதில் கொடுக்க வந்த போது தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல. நான் கொடுக்கிற பதில கேட்டுதான் ஆகணும். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும். माननीय मंत्री जी, एक मिनट. If I'm like before, I can talk shouting. आपकी बात ही रिकॉर्ड. I am not able to shout now, sir. आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही. This is purposely trying to disrupt me. Purposely trying to disturb me because I'm telling the truth. If they have objection, they should speak afterwards. Thank you. இன்னும் கேட்க போங்க. Thank you. ये what is it, sir? ये क्या है सर? सर, क्योंकि तमिल में इतना स्पष्ट बोले कि हमारे सरकार बच्चे के पेंसिल के ऊपर, दूध के ऊपर, मैं जरूर इसको भी तमिल में कहना चाह रही हूँ सर, चाहे वो इधर नहीं है बाहर जाके सुन लें, वो गलत बोलने वाले विषय उनके मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया
उन्होंने वो नहीं किया, ऊपर से हमसे पूछ रहे। और ये भी एक दुख की विषय में बोलना चाह रही हूं, जब पत्रकार लोग जाकर के उनसे पूछे, आपके मैनिफेस्टो में आपने बोला आप क्या कम नहीं किया, क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार 2 बार ये कर चुके हैं, आप क्यों नहीं किया? उस समय எங்க மத்திய அரசு குறைச்சிட்டாங்க வரிய, நீங்க ஏன் குறைக்கல? ஒரு தரம் இல்ல 2 முறை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஏன் குறைக்கலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அமைச்சர் சொல்றாங்க பதிலு, நாங்க ஏதாவது டேட் சொன்னோமா? நாங்க சொன்னோம் அவ்வளவுதான். क्या हमने कुछ डेट दिया है क्या? We said it, that's all. तारीख नहीं बोला ना, जब कट करेंगे। अरे मैनिफेस्टो में बोला केंद्र सरकार 2 बार काटा, आपने कम नहीं कर रही हो, और जब आप पूछ रहे हैं मीडिया, आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमने डेट थोड़ी ना दिए, करेंगे, ये जवाब है सर। और वो लोग बोल रहे हैं मुझे एरोगेंट। आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू कॉल मी एरोगेंट, मगर जवाब जनता के लिए जो आज मैं बोलने वाली थी क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर शायद वो ऑब्जेक्शनेबल लिस्ट में पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री में निकाला गया, मगर वही हो रही है। முதல கண்ணீர் வடிச்ச கதை இது. மத்திய அரசு குறைப்பாங்க, ஆனா நான் குறைக்க மாட்டேன், டேட் சொன்னேனா? ஓகே சார். और दूसरा सर ये भी वो लोग बोले, और वो भी उनके हाउस में भी बोले कि डीजल का तो हम करने के लिए बोले, मगर हम कर नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास कितने लोग डीजल उपयोग कर रहे हैं नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो वायदा दिया कम करने के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास नंबर नहीं है। सो आखिर कुछ भी कटौती नहीं हुई, केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार कटौती होने के बाद भी वो कम नहीं किए, और आज खड़े होकर के हमसे बार बार पूछ रहे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को भी सब्सिडी देने के लिए बोले कि हम नहीं देंगे। सो மத்திய அரசு மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க வாக்குறுதியை ஏன் நிறைவேற்றலன்றதை எடுத்து சொல்லணும். 2 முறை நாங்க குறைச்ச பிறகு கூட நீங்க குறைக்கல. और इवन वर्स, आज पाल वेला कुरंजी जास्ती பண்ணிட்டீங்க, दूध के ऊपर आपने डाल दिया जीएसटी, कहने वाले तमिल डीएमके के नेतागण को मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए हमने क्लियरली बोले ब्रांडेड दूध के ऊपर लगेगा, लूज में दूध खरीदो कुछ जीएसटी नहीं है, और केंद्र सरकार को इतना टिप्पणी करने वाले डीएमके सरकार क्या किया है सर? वो ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर मैं बोल रही हूं, लूज के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये लीजिए, मान लीजिए 1 केजी का दही खरीदना है, डीएमके को बताना है तो उनकी भाषा में बता। हाँ, மத்திய அரசு மேல இவ்வளவு கோமா ஜிஎஸ்டி போட்டுட்டீங்கன்னு சொல்ற டிஎம்கே, பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலதான் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். அது மத்திய அரசு போடல, மோடி ஐயா போடல, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உங்க மந்திரியும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் நிர்ணயம் ஆச்சு. அதுல 5% தான் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல வரி போடணும். இன்னைக்கு பப்ளிக்கா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்க ஐட்டம் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன். 1 கேஜி தயிர் வாங்கினா 100 ரூபா பழைய ரேட்டு, அதுக்கு மேல 5% டாக்ஸ் போட்ட பிறகு அது 105 ரூபா ஆகணும். ஆனா நீங்க என்ன விலைக்கு விற்கிறீங்க? 120. 5% ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் போட சொல்லிச்சு, ஆனா நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்க? 1. ரெண்டாவது, லஸ்ஸி, அதாவது இனிப்பா இருக்கக்கூடிய மோர் 27 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது பழைய ரேட்டு. 5% ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் போட்ட பிறகு பிராண்டட் ஐட்டம் போட்ட பிறகு அது 28 ரூபா 35 காசா இருக்கணும். ஆனா நீங்க 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க. ஜிஎஸ்டி மேல பழி போட்டுட்டு நீங்க ஹையர் ரேட்ட போடுறீங்க, மக்களுக்கு பாரம் சுமத்துறீங்க. அதே மாதிரி பட்டர், மில்க், மோர்
அதே மாதிரி மோர் 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது மோர், அது மேல 5% டாக்ஸ் போட்டா அது 10 ரூபா 50 காசு ஆகணும். 12 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு விற்கிறீங்க. இன்னைக்கு அது எப்படி நியாயம்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல போட்டுக்கிட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு விற்கிறீங்க படி ஜிஎஸ்டி மேல. ஆனா ஜிஎஸ்டினா மத்திய அரசுன்னு சொல்றீங்க. மத்திய அரசு இல்ல, உங்க அமைச்சரும் தான் உட்கார்ந்து இருந்தாரு அதே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல. ஏகமானதாக எல்லாரும் சேர்ந்து யுனானிமஸா எடுத்த டிசிஷன். இதுல புதுசா ஏழைகளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல சார். சோ ஒவ்வொரு ஐட்டம்லயும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 5% போடுங்க பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலன்னா, நீங்க 5%க்கு மேல போட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல பழி சொல்றீங்க. இது தப்பு. Sir, now I come to the general issues of GST. I want to tell you the recent decisions taken in the GST Council on milk or any other item have all been discussed by the GST Council in full detail. I just want to highlight the fact that any GST Council decision is a decision of the GST Council in which all the ministers are present. 2/3 उनका वोटिंग होता है, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का. वोटिंग नहीं हुआ, कंसेंसस में डिसीजन हुआ. मैं सिर्फ ये बात रखना चाह रही हूं कि इसको एंटी, हाँ राज्य मंत्री, राज्य वित्त मंत्री गण बैठते हैं. सो इसको एंटी पुअर बोलने वाले, 1 मिनट में आई वांट टू एक्सप्लेन दैट. लेवी is only on pre-packaged items, labeled goods, and not on loosely sold items. So poor people के ऊपर कुछ इसका असर नहीं है. Similarly, 25 kgs पैकेट के ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होलसेल व्यापारी से व्यापारी ले आकर के बिना टैक्स उनके किराना शॉप में रखे छोटे छोटे क्वांटिटीज में गरीब के लिए बिकने वाले कारण के लिए वो जब 25 kgs लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है. होलसेलर को वो उधर से ले आकर के उनके दुकान में रखेंगे. इसीलिए 25 kgs का पैकेट के ऊपर भी लूज में बिकने के लिए उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है. इसीलिए मैं ये बात जरूर कहना चाह रही हूँ, लूज में दूध हो, चावल हो, पफ्ड राइस हो, बार्ली हो, ये सब के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है. गरीब को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया. सिर्फ पहले से पैक होकर के उसमें कुछ ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड ब्रांड है, इनके ऊपर ही टैक्स है. आप एक बोरी में ले आओ, बिको, उसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं. ये याद रखना चाहिए. There is no discrepancy and every minister has sat through it. I want to highlight, sir, I want to tell you sir, इस डिसीजन में हम कैसे पहुंचा. इसमें 3 लेवल पर डिस्कशन हुआ. फिटमेंट कमेटी में अधिकारीगण बैठते हैं, उसमें राजस्थान से भी अधिकारी है, वेस्ट बंगाल से भी अधिकारी है, तमिलनाडु से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से, ये सब अधिकारीगण बैठते हैं. उसके बाद ये लोग के इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार. 9,958 सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट उसमें गया. किसके माल है? उस समय बोले कि हम दे रहे हैं सब्सिडी, मोदी जी उसका पेमेंट कर रहे हैं. सो ऑयल बॉन्ड के वजह से हमारे ऊपर बर्डन नहीं है. ये पैसा गरीब के लिए जाने के लिए हमारे हाथ में रहता नहीं तो ये प्रिंसिपली रॉन्ग. ऑयल बॉन्ड फ्यूचर के जनरेशंस के ऊपर बर्डन लगा करके, मगर आप श्रेय लेकर के चले गए. हमने तो आपके ऑयल प्राइस के लिए सब्सिडी दिए. गलत है. इट वॉज टोटली गलत. सो आई वॉन्ट टू
come to an end, sir. इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये मैं ज़रूर कोशिश किए सब लोग का प्रश्न को जवाब दूंगी। सिर्फ एक विषय बार बार हमारे ऊपर डालते हैं, इसीलिए मैं बात करती हूँ। मोदी सरकार अंबानी अदानी के लिए काम करता है, आप लोग यही करते हो। सिर्फ दो उदाहरण देना चाहती हूँ। सर, आप राजस्थान से हैं, सोलार प्रोजेक्ट राजस्थान में इस साल जून 11 तारीख 2022 में और इससे पहले दिसंबर 15 2021 में 21 में अशोक गहलोत जी, मैं नाम ले रही हूं, क्षमा कीजिए, सीएम साहब है राजस्थान का, गलत नहीं है, उनको डिसीजन उनके कैबिनेट के द्वारा लेकर के 2397 हेक्टेयर गवर्नमेंट ने लैंड दिया है अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग के लिए। राजस्थान सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, अदानी जी को लैंड सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। हमें अदानी अंबानी ऐसे चक्कर में हम नहीं आ रहे हैं, आप बुला बुला करके दे रही हो अदानी जी को। और दूसरा, दिसंबर 15 2021 में 2021 में एक अदानी जी के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के साथ एमओयू साइन भी हुआ, 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क के लिए जॉइंट पार्टनरशिप है। ये सब क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो विषय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक दिन पहले, ये एग्रीमेंट के एक दिन पहले, माननीय लोकसभा सांसद पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अभी नहीं पूर्व अध्यक्ष, जयपुर में जाकर के उधर मोदी गवर्नमेंट अदानी और अंबानी को फेवर करता है ऐसे पब्लिक मीटिंग में कहकर निकल गए। अगले दिन गहलोत जी एग्री कर रहे हैं अंबानी साहब के साथ, अदानी साहब के साथ। सो उनके अपने ही चीफ मिनिस्टर अंबानी अदानी को फेवर करते हुए इतने काम कर रहे हैं, जो कि माननीय फॉर्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी उधर जाकर जयपुर में स्टेटमेंट दिए, उसको परवाह नहीं करते हुए अगले दिन अदानी के साथ 2 एग्रीमेंट हुआ है। और कांग्रेस वाले बार बार इधर हमें टोकते हैं कि अंबानी अदानी सरकार, अरे भैया आप बुला कर दिए। ऐसे ही डीएमके जो कांग्रेस के अलायंस में है, பெரிய பெரிய அம்பானி அதானிக்கு தான் நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க. அரே பையா, உங்க நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் 59 எம்ஓயு சைன் ஆயிருக்குது, 35,000 கோடிக்கு डेटा सेंटर सेटअप பண்றீங்க अदानियोட சேர்ந்துக்கிட்டு। तमिलनाडु में 59 एमओयू साइन किया गया है, जिसमें 35,208 करोड़ का डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए अदानी के साथ वो भी हाथ मिला रहे हैं भाई। सो तमिलनाडु कांग्रेस और डीएमके के सरकार है, उधर भी वो कर रहे हैं, मगर बार बार हमें बोलते हैं। दूसरा, एक और तमिलनाडु में दूसरा सेकंड फेज का डेटा सेंटर भी वो तमिलनाडु में अडानी ग्रुप ही कर रहे हैं सर। सो जब याद दिलाते हैं कांग्रेस वाले हमें अदानी अदानी करके, ये सब उदाहरण उनके सामने रखना चाहिए, भैया ये कौन है। सो सर मैं ज्यादा नहीं दूंगी, बहुत आप टाइम दिया मुझे। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बात बोले कि ये फ्रीबीज का कल्चर से हम निकलना चाहिए। स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहे, स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहे बोलने वाले, कम से कम हमारे जनरेटिंग कंपनीज को, जेनकोस को, वैसे ही डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बकाया है वो क्लियर कर दें। वो लोग भी पावर जनरेट करके आपको कैसे देंगे, नहीं तो जनता को पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली चाहिए, रोक सकेंगे क्या? क्योंकि आपके बकाया तमिलनाडु 20,990 करोड़ जेनकोस को बाकी, तेलंगाना 7,388 करोड़ बाकी, राजस्थान 5,043 करोड़ बकाया,
झारखंड 3,698 करोड़ जेनकोस के लिए, डिस्कॉम्स को आए तेलंगाना 11,935 करोड़, तमिलनाडु 3,677 करोड़, पंजाब 2,612 करोड़, राजस्थान 1,791 करोड़, केरला 1,278 करोड़। ये सब बकाया उनका है, स्टेट ये डिस्कॉम्स को, जेनको को देना है। ऐसे सब्सिडी भी देते हैं डिस्कॉम्स, वो सब्सिडी भी वापस नहीं दे रहे। वो रिसीवेबल के नाते डिस्कॉम्स के पास पंजाब से 9,000 करोड़, राजस्थान से 15,597 करोड़, ये सब बकाया कौन देंगे सर? छत्तीसगढ़ 2,699 करोड़। सो भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इन सभी दिक्कत के बावजूद भी, ग्लोबल दिक्कत, देश के अंदर दिक्कत, इन सभी दिक्कत के बावजूद भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जीएसटी के बारे में बात करने वाले बार बार मैं हाथ जोड़ करके पूछती हूं, मांगती हूं और समझाने के लिए कोशिश कर रही हूं। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन बॉडी है जिसमें सभी स्टेट्स और केंद्र सरकार बैठते हैं। उसमें निर्णय मोदी जी नहीं करते, स्टेट्स का फाइनेंस मिनिस्टर सब बैठ करके करते हैं। उनके अपने राज्य में जाकर के वो सच्चाई बोलना चाहिए, नहीं बोलते अंदर एक विषय बाहर दूसरे ना करना। ये भी मेरा विनम्र रिक्वेस्ट और बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।